Welcome everybody to this new lecture of our series Mechanics. Today we will discuss yet another lecture and another topic of our syllabus. Uh, the agenda of today's lecture is about angular momentum, the concept of angular momentum. In the previous lecture, we were discussing about the linear momentum. Okay, and this time we will try to discuss about uh, approximately all concepts about the angular momenta. Okay, so when we discuss about the linear momenta, so the body in linear momenta is having a velocity called linear velocity. Okay, and when a body move with a linear velocity, the momentum associated with the body is known as the linear momenta. And when a body is moving in a circular manner, okay, uh, then this type of motion in associated or this type of motion about a fixed center is known as the angular motion of a body, and vessel velocity associated with the body is known as the angular velocity of the body of a particle, and momentum associated in this condition with the system or with the body or with the particle is known as the angular momentum. So our concentration is about angular momentum in this video lecture. Okay, so let us start. So what is angular momentum? Okay, so the angular momentum of a particle about a fixed point is defined as the moment of its linear momentum about that point. Okay? एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम का ही मोमेंट है, यानी अगर लीनियर मोमेंटम का आप मोमेंट कैलकुलेट करें किसी भी फिक्स्ड सेंटर के अलोंग या किसी भी फिक्स्ड सेंटर के अबाउट, so that is known as the angular momentum of that particular body or that particular particle. Moment of linear momentum. Okay, आगे आप बहुत सारी इससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे. The law of angular momentum of a single particle, the angular momentum of a system of particle. Okay, law of conservation of angular momentum. ये सब बातें आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं. So it is measured by the vector product of linear momentum P equals to ma. You know that what is P, linear momentum. We were discussing about the linear momentum in the last lecture. So P equals to mv of the particle and its vector distance from a fixed point in the inertial frame. Okay, so अगर मैथमेटिकली इसके डिफाइन करने की बात करें तो फिजिकली तो ये मोमेंट है एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का, लेकिन मैथमेटिकली अगर बात करें तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम का एंड द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, और यू जनरली से इट फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो P, you know that vector quantity and vector distance are the cross product of these two vectors. Okay, vector product of these two vector quantity, the linear momentum and the vector distance from a fixed point or in generally from the center. Okay, so the vector product of these two vector quantity is known as the angular momentum of that particle. Okay, so angular momentum denoted by J is given by R cross P, the vector product or cross product of these two vector quantity, the vector distance from the fixed point and the linear momentum, the vector quantity or the vector product of these two physical quantities known as the angular momentum of that particular particle. So
you know that r is same here, cross with p, p equals to mv. So actually this is the cross product between r cross mv, and you know that in the most of the cases we assume that the mass of the particle is remains constant. In most of the cases, approximately in 99% cases, the mass of the particle remains constant. So the actually this is the cross product between the vector distance from the center and the velocity of the particle or velocity of the body. Okay, so this, so angular momentum being a vector product of two vectors is obviously a vector quantity. Its direction is perpendicular to both r and p. यानी अगर इस तरह से इस फिगर से आप इसको समझना चाहें तो ये एक्चुअली, चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो ओबियसली ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। आप इस बात को जानते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट of the two vector quantity is always gives us a cross product, and the direction of this particular vector quantity is always perpendicular to both this one and this one. If r is in the direction of x-axis, generally you can say that if r, the vector distance, is in the direction of x-axis, p is in the direction of y-axis, then definitely the angular momentum is always pointed in the direction of z-axis. That means perpendicular to both r and p. Okay, so इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये इसका सेंटर से डिस्टेंस है, वेक्टर डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं स्मॉल r, और ये एंगुलर जो वेलोसिटी है इसकी वो ओमेगा है, जिससे ये इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। सो जो पार्टिकल m का लीनियर मोमेंटम है वो है p इक्वल्स टू m, और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि जो वेक्टर डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय r, and the momentum is pointed in the direction such that the angle between the vector distance from the center to the mass m and to the direction of linear momentum is always 90 degree. Okay, so now you can easily say that the direction of angular momentum is always pointed away from the plane in which these two vector quantities are lies. That is, if this is, say this is the plane xy, then definitely the direction of the angular momentum is always pointed in the direction of z-axis. So this figure suggests us about the direction of the vector quantity j, that is known as the angular momentum. So actually the angular momentum is the moment of momentum, moment of linear momentum, moment of linear momentum. Okay, and because this vector quantity, this is a vector quantity, so this should have the direction always as well as the magnitude. So magnitude given by this, the cross product of r and p, and direction is given by the always given by these two vector quantity, and always perpendicular to the plane in which these two vector quantities are lies. Okay, अब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन द केस of a particle of mass m describing a circle of radius r with uniform angular velocity omega and linear velocity v equals to r omega. This is the relation between the linear velocity and angular momentum. हमारे पास एक पार्टिकल m है जो एक सर्कल है रेडियस r का, इसके ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका एक, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, और
जो लीनियर वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू और इज गिवन बाय v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओके, तो इसके एंगुलर मोमेंटम को अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कितना होगा वो देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम J इक्वल्स टू mv, और मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन के ऊपर बात हम पीछे पीछे कर चुके हैं। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर r एंड टू द वेक्टर p। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द direction of vector r and to the direction of vector p. So magnitude of the angular momentum is given by J equals to mvr. Okay, क्यों ये रिजल्ट कहाँ से आया है हमारे पास? देखिए, आपको ये पता है कि जो वेक्टर J है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक है हमारे पास वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और अ फिक्स्ड पॉइंट, you say that in general, and cross the linear momentum, because these are two vector quantity, then the cross product of these two vector quantities should be a vector quantity. So r and p is given by mv, so there is a cross product between r cross mv, because in most of the cases m remains constant, the mass of the particle remains constant, so m is same here, and cross product between the vector r and vector v, and this cross product gives us mvr sin theta. Okay, because the cross product between these two vector quantity, you remember a cross b, the vector a cross vector b gives us always ab sin theta. Okay, look at here, हम ऐसा पहले स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा कैसा आता है? a b sin theta and n cap, where n cap gives the direction of this particular cross product. ओके, और हमारे पास यहाँ जो है वो है J इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर केस में R क्रॉस P, ऐसा हमारे पास है, और P को हमने लिखा है R क्रॉस mv. If m remains constant, then m is constant, then there is a cross product between r and v. There is a cross product between r and v. So the vector J is given by m. R cross v gives me r v sin theta and n cap, where n cap, the unit vector, the normal unit vector, denotes the direction of this vector quantity J, the angular momentum. So this can be written as mvr sin theta, और चूंकि जो डायरेक्शन है J का वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है to the direction of r and v, or you can say that r and p, so mvr sin 90 degree, and this sin 90 is 1, so J equals to mvr. So magnitude wise J equals to mvr. Magnitude wise you can say that the magnitude of this vector quantity J is equals to mvr. Okay, so this is the concept of cross product of two vector quantity. So look at here now that J equals to this product mvr, and you know that this is the relation between the linear velocity and the angular velocity, v equals to r omega. So put here this relation mvr, so J equals to m r square omega. So this is the magnitude of the angular momentum we studied so far. This is that,
and its direction is always perpendicular to the plane of the circle. जिस प्लेन में वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ और टू द प्लेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल इन विच द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मैनर. ओके, सो ये कंसेप्ट था इसके पीछे. नाउ in general case, the magnitude of the angular momentum of the particle is given by J equals to R mv or R mr omega mr. Omega is mr square omega, and omega, the angular velocity, can be written as d theta by dt, because this is the time derivative of time derivative of angle, or change in angle. So angular velocity, change in angular displacement. So the rate of change of angular displacement is given as angular velocity. So this can be written as mr square theta dot. This is equation number 1. So in the case of a single particle, the magnitude of the angular momentum is given by J equals to mr square omega, and in general case we can write the same equation mr square omega as mr square d theta by dt, and d theta by dt is given by theta dot, and say this is the equation number 1. अब ये जो प्रॉब्लम अभी हमने स्टडी किया है, इसी प्रॉब्लम का अब हम जनरलाइजेशन करना चाहते हैं. और जनरलाइजेशन से मेरा अर्थ है कि अगर हमारे पास अब एक से ज्यादा पार्टिकल है, यानी जब भी हम एक से ज्यादा पार्टिकल बोलना शुरू करते हैं तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाता है. मीन्स 2, 3, 4 एंड n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इफ देयर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलना शुरू कर देते हैं. तो अभी अब अगर हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है या फिर कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसका हम एंगुलर मोमेंटम डिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसी आइडिया को जो हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए अभी स्टैब्लिश किया है, इसी का जर्नलाइजेशन आगे हम करने वाले हैं. ठीक है, यानी अभी जो हमने स्टडी किया है वो स्टडी किया है कि अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल हो और वो किसी प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उसके जो वेक्टर r का डायरेक्शन है, वेक्टर p का डायरेक्शन है, उनकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पार्टिकल का वो कितना होगा, किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है. बेसिकली हमने किसी भी सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड आउट किया है इस पिछले टॉपिक में, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब इसी टॉपिक का हम जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं, यानी अभी हमारे पास मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम है, यानी उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं. तो ऐसा सिस्टम जब किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम करता है या एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है, तो फिर उस पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये सब बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो एक बात और कि यहाँ जो हम बॉडी ले सकते हैं, जिसको मैं रिजिड बॉडी कह रहा हूँ, वो रिजिड बॉडी का एक डेफिनेशन आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं जिसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर आप अप्लाई कर दें तो वो चेंज ना हो. ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं. यानी इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी को, इस तरह की शेप की बॉडी को मैं एक रिजिड बॉडी कह रहा हूं, तो इसका कंडीशन ये है कि यहां से अगर आप एक्सटर्नली इस बॉडी पे फोर्स इंपोज करें और इसके पार्टिकल्स जिससे ये बॉडी, ये सिस्टम मिलकर बना हुआ है, इनके बीच का ये डिस्टेंस या फिर
इनके बीच का ये डिस्टेंस या फिर इनके बीच का ये डिस्टेंस या फिर इनके बीच का ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस चेंज ना हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। और अगर ऐसा होता है तो हम इस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। मीन्स अगर बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं कहते। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी, वह इसी तरह का हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसके पार्टिकल्स के बीच का, जिससे वो मेड अप है, उस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज नहीं होता है। तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ओके, सो एक कंसेप्ट इसमें और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जो बॉडी का शेप लें वो एक रेगुलर शेप की ही बॉडी हो। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी इर्रेगुलर शेप की बॉडी को भी यहाँ टेक ओवर कर सकते हैं। यानी जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया है, इन फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने एक रेगुलर शेप की बॉडी को यूज किया और यहाँ मैंने एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी को यूज किया है। इस तरह का कंसेप्ट है कि ये बॉडी, ये जो रेगुलर बॉडी है, ये एक एक्सिस है जिसको मैंने कहा है वाई वाई डैश, और यहाँ भी एक एक्सिस है जिसको नाम दिया गया है वाई वाई डैश। ये बॉडी भी और ये बॉडी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इस फिक्स्ड एक्सिस वाई वाई डैश के अलोंग या अबाउट, अबाउट ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर मोशन कर रही हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो अर्थ का मोशन है वो दो तरह से है। एक तो अर्थ का मोशन है रोटेशनल मोशन आप उसे कह सकते हैं, या स्पिन आप उसे कह सकते हैं। यानी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही स्पिन कर रही है। और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें अर्थ सूर्य के चारों तरफ, जो सन है उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इस पे बात नहीं कर रहे। जो रोटेशनल मोशन है यानी जो अर्थ का स्पिन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ उसी तरह की ये फिनोमिना है। यानी ये एक बॉडी है जो एक एक्सिस है, जो जिसको मैंने नाम दिया है वाई वाई डैश। ये बॉडी उसके चारों तरफ स्पिन कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है। तो इस बॉडी, चूंकि ये बॉडी है एक रेगुलर या फिर इर्रेगुलर शेप की बॉडी है, इस बॉडी का हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो हम लॉजिक लेके आए हैं पीछे से, वो जी लेके आए हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का ही मोमेंट है। यानी जो एंगुलर मोमेंटम की किसी भी सिंगल पार्टिकल की बात करें तो वो होता है J इक्वल्स टू R क्रॉस P। तो उसी लॉजिक को हम आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और अ रिजिड बॉडी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी। जब भी ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ हम एक से ज्यादा पार्टिकल के ऊपर बात करने वाले हैं। मीन्स मोर देन वन पार्टिकल, इट मे बी 2, 3, 4, 5 एंड अप टू n पार्टिकल्स। सो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास, या फिर आप इसको रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं। रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम of all particles of a rotating rigid body about the axis of rotation is called its
एंगुलर मोमेंटम, यानी इस पार्टिकल के जितने भी इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल है या इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल, इन सब पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट का सम होगा वही क्या होगा, इस बॉडी या फिर इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, सो लेट्स सी हियर, when a body is free to rotate about an axis with angular velocity omega of all particles at whatever distance thus is the same but linear velocity of the particles are different। क्यों different है? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी इस नाइट्स में समझाया गया है आपको कि जो इस तरह का सिस्टम जब आप यूज कर रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो रेगुलर शेप की भी हो सकती है, इरेगुलर शेप की भी हो सकती है, वो किसी कोई एक्सिस है वाई वाई डैश, इसके अबाउट वो रोटेट कर रही है विद फिक्स्ड एंगुलर और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो तो फिक्स है, लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी फिक्स नहीं होगा। क्यों फिक्स नहीं होगा? बिकॉज लीनियर वेलोसिटी का जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और r हर पार्टिकल के लिए होगा। देखिए यहाँ मान लीजिए ये m1 मास का पार्टिकल है, इसका इस रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस है r1, दूसरा मेरे पास ये वाला पार्टिकल है m2, इसका इस एक्सिस से जो वाई वाई डैश एक्सिस है इससे डिस्टेंस है r2, कोई तीसरा पार्टिकल है उसका डिस्टेंस है r3। ऐसे इरेगुलर शेप की बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं आप। ये कोई पार्टिकल है m1 जिसका रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है r1, एक कोई दूसरा पार्टिकल है m2 जिसका इस रोटेशनल एक्सिस वाई वाई डैश से डिस्टेंस है r2, कोई तीसरा पार्टिकल है m3 जिसका मास है m3, उसका इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है r3, और ऐसे बहुत सारे और पार्टिकल्स भी हैं। यानी हर पार्टिकल के लिए जो ये डिस्टेंस है r1, r2, r3, ये हर पार्टिकल के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा, है ना। किसी दूसरे पार्टिकल की कोई दूसरा होगा, किसी तीसरे पार्टिकल की कोई तीसरा होगा। इसीलिए चूंकि जो फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं लीनियर वेलोसिटी का वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं दैट v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये जो r पे डिपेंडेंस है लीनियर वेलोसिटी का, तो r हर पार्टिकल के लिए अलग है, डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो ये वाला r का डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से हर पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होगी, जबकि उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसीलिए लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल के लिए सेम होगी। सो लेट्स सी हियर, द angular velocity is fixed but the linear velocity is different for different particles. Okay, so let us consider a system of particles of a rigid body in which particles of masses m1, m2, m3 इस तरह के masses हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया of rigid body lying at a distance r1, r2, r3 up to from the axis of rotation, that is y y dash, the magnitude of the linear velocities are v1, v2, v3 respectively. Okay, so ये particles हैं हमारे पास m1 जिनके masses हैं m1, m2, m3, और ये जो rotational axis है y y dash, इनका इन particles का इस axis से जो distance है वो है r1, r2, r3, और इन पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v1, v2, v3। इस तरह का हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, लेट्स सी हियर, सो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m के पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, मान लीजिए वो v1 होगी, अभी हमने कंसीडर किया है। तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा, v1 the linear velocity
of the is v1 and momentum, what is momentum of that particle is linear momentum of that particle is m1 into v1. So actually this is the linear momentum. Okay, this is the linear momentum. Linear momentum. Linear momentum of the particle of mass m is given by m1 v1 mass into velocity. और चूंकि हम केवल अभी बात कर रहे हैं m1 मास के पार्टिकल की, तो इस मास के पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 इंटू v1। और आप ये जानते हैं कि v1 किसके बराबर होगा, r ओमेगा के। चूंकि हम v1 मास के पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 ओमेगा। ओके, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंट आ गया, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आ गया। कौन से पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है, ये m1 मास वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम किससे डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले पार्टिकल का जो मास है वो m1 है, पहले वाले पार्टिकल का जिसका हमने मास m1 किया है उसका वेलोसिटी हमने कंसीडर किया है v1 है। तो इस मास के पार्टिकल का इस वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या देगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ मास m1। और जब हम इसका लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे तो एक बात हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं v1, इसकी वैल्यू होती है v इक्वल्स टू r ओमेगा, द फॉर्मूला। बट जो डिस्टेंस है m1 मास से पार्टिकल की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है, r1 है। तो यही फॉर्मूला जब इसकी वैल्यू आप v1 की यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 r1 ओमेगा, वेयर r1 चूंकि v1 इक्वल्स टू हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा, v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा। हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about the axis of rotation or angular momentum of the particle of mass m about the axis of rotation is m1 v1 into r1। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम, j इक्वल्स टू m v r। तो वही फॉर्मूला हमने पार्टिकल m मास वाले पार्टिकल के लिए लगा दिया, m1 मास वाले पार्टिकल के लिए। तो m1 v1 r1 और v1 की वैल्यू अभी हम स्टडी करके आए, v1 इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, m1 r1 ओमेगा इंटू r1, r1 की मल्टीप्लाई हुई तो m1 एज इट इज r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये जो मोमेंट आया यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम आया पार्टिकल नंबर 1 का है, यानी जिस पार्टिकल का मास हमने m1 कंसीडर किया है। अब इसी तरह से हम m2 मास वाले पार्टिकल के लिए करेंगे और रिपीटेडली फिर हम ये m3 मास के लिए करेंगे और हम ऐसा mn मास के पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 about the axis of rotation is equals to m2 v2 r2। so m2 v2 की वैल्यू रखी r2 ओमेगा into r2, the answer is m2 r2 square omega। in the same way as we get m1 r1 square omega, in the same way m2 r2 square omega। okay, in the same way we can write the moment of linear momentum or angular momentum of other particle of mass m3 m4 up to the angular momentum of these particle of mass m3 and m4 are m3 r3 square omega, m4 r4 square omega and up to now the total angular momentum of the system of particles of rigid body can be obtained by the sum of magnitudes of all angular momentum। यानी पहले m1 मास वाले पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया, m2 मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया, m3 मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, m4 मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। और ये पार्टिकल को एक आप ये कह सकते हैं बहुत रफली कि ये इनफाइनाइट नंबर
और पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो अगर हमें इस पूरी रिजिड बॉडी का या इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का सम करना पड़ेगा। एंड दैट इज गिवन बाय J इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r2 स्क्वायर ओमेगा। और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। आप ये देखिए डॉटेड प्लस के बाद जो डॉट लगे हैं ये बता रहे हैं कि ये सीरीज अभी स्टॉप नहीं हुई है, ये आगे भी बढ़ती रहेगी। सो दिस formula can be written as summation I equals to 1 to n mi ri square omega, and you familiar with this quantity, we have to be study about this in the later portion of this unit. This summation quantity I equal to 1 to n mi ri square is denoted by capital I, and this is known as the moment of inertia। और इसके बारे में हम इस यूनिट के दूसरे वाले पोर्शन में बात करेंगे। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट रोटेशन एक्सिस के अबाउट, वहां हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप इस क्वांटिटी को क्या कंसिडर करेंगे, आई, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, एंड दैट इज गिवन बाय द मास of that particular body into the square of the distance from the rotation axis. So J, the vector quantity J is given by omega, is because of constant quantity is coming out of the integration and multiplied by I. So the final result is J, the vector J is equals to I and vector omega, that is J equals to I omega. I is moment of inertia of the rigid body about the axis of rotation. Okay, so this is the concept of angular momentum. What is angular momentum? Physically it is simply the moment of momentum. Okay, mathematically this is the cross product between the vector distance r from the fixed center and the linear momentum vector p. Okay, and you can easily find out the linear momentum of a particle and its distance, and also the linear momentum and moment of momentum, that is the angular momentum of a system of particle or a rigid body. So students, that's all for now. Meet you into the next one. Thank you.